Good afternoon, Guru Shant. Hi, Lynn. Yes, okay. I will. From there only, yesterday the connection was interrupted, so I will start from that point only. Administration of the copyright. Okay, we'll start. Uh, Yesterday, we have finished out the two important point about the copyright law. That 2 points yesterday we have discussed was number one point which we have discussed was registration of the copyright, and the second point which we have discussed was time limit for which there is a copyright protection. And thereafter, unfortunately, the internet connection get disrupted and the lecture was disconnected, which even I don't understand. I continued the lecture and thereafter sometime I understand that way. So we are going to start now with a fresh point, and that fresh point we are going to see the administration of the copyright is the point we are going to start today. What is the point? Administration of the copyright is the point we are going to start today. See, friends, our Copyright Act 1957 had a chapter number 2, and in that chapter number 2 there are section 9 to 13. In that section 9 to 13 we get the provisions as relating to administration of the copyright, and the authority for the registration of the copyright. Now, in the administration of the copyright, the very important point which come in front of the mind is that is there any government setup for the enforcement of or for the advice to the government on the copyright issue? The answer for this question is a yes. There is a one body in India which advise the government on the copyright matter, and that body is called Copyright Enforcement Advisory Council is there, which is the body Copyright Enforcement Advisory Body. CEAC is the body which is there for the purpose of advising the government on the law relating to the copyright issue. Now see, friends,
Now another question in the administration of copyright which come, is there any special code for the protection of the copyright? Is there any special judicial body for the protection of the copyright? The answer for this particular question is a no, but there is no special court for the copyright cases. Our regular district court, civil district court, entertain the cases relating to the copyright. Okay, but there is one quasi-judicial body in India for the adjudicating of certain matter relating to the copyright. Getting the point? Who is there? One quasi-judicial body is there who is there for the purpose of adjudicating some of the matter which are invested to them. And the name of that particular body is a copyright board is there. Getting what is the name of the board which is there for the adjudicating some of the matter relating to the copyright, and that body is a copyright board is there. Now you may ask, what is this copyright board? See friends, as I already told you, copyright board is a quasi judicial body. What is the nature of this particular body? Not purely judicial, not purely executive. This is a quasi judicial body. This copyright board is consisted of one chairman, and another two or more member. That two or more member maximum may be the 14. So in all, copyright board is consisted of one chairman and another members who may be maximum number 14 will be there. Now see friends, the chairman of this particular copyright board will be of the qualification which are there for the judge of the high court. You may ask me that whether all routine cases of the copyright goes to the copyright board. The answer for this particular question is that no, all routine cases relating to the copyright are not being filed with the copyright board. So you may have a question, then what type of issues this copyright board handle? So we will deal with the answer of this particular question. See, the jurisdiction of the copyright board is therefore number one, hear the appeal against the order of the registrar of the copyright. Remember yesterday we have seen with whom we make the registration of the copyright. We make the registration of copyright with the registrar of the copyright. Suppose you feel that you are aggrieved with the decision of the registrar of the copyright. अगर आपको ऐसा लगता है कि copyright registrar के decision से आप पे अन्याय हुआ है, तो आप किसके पास अपील कर सकते हो? Copyright board के पास अपील कर सकते हो. So what is the first jurisdiction of the copyright board? Hear the appeal against the order of the registrar of the copyright. Now see second point. Here the application for the rectification of the entries in the register of the copyright. कॉपीराइट रजिस्टर में हमारा कॉपीराइट रजिस्टर होने के बाद में उसमें कुछ गलती हुई है और हम उस गलती को सुधारना चाहते हैं, रेक्टिफाई करना चाहते हैं, और उस रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर इन द रजिस्टर ऑफ द कॉपीराइट के लिए एप्लीकेशन करनी है. तो रेक्टिफिकेशन मतलब करेक्शन, सुधारना. तो उसके लिए एप्लीकेशन कहाँ पे करेंगे बोलो? हम लोग कॉपीराइट बोर्ड के पास एप्लीकेशन करेंगे. नंबर 3 देखो, अभी हमारा जो अगला चैप्टर हम आज डिस्कस करेंगे ना, that is assignment of the copyright. Assignment stands for the transfer of copyright. See, suppose any dispute arises as relating to the matter of assignment of the copyright, then that dispute can be adjudicated by the copyright board. कॉपीराइट को ट्रांसफर करने को लेकर कुछ डिस्प्यूट अराइज हो गया, तो वो डिस्प्यूट कौन हियर करेगा बोलो? Copyright board is the body which is going to hear that particular dispute. ठीक है. Then next point, in the assignment of the copyright, we are going to deal with one issue which is called as a compulsory license. अंदर हम लोग इससे डिटेल में डील करेंगे, बट अभी रेफरेंस है इसलिए देखो, अगर कोई पर्टिकुलर ऑथर अपना वर्क क्रिएट करने के बाद वो पब्लिक में पब्लिश नहीं कर रहा है, if any author after creating his work is not getting ready to publish that work to the people or get the work reached up to the people, then we may apply to the copyright board for grant of compulsory license. और अगर वो वर्क ऐसा है कि जो पब्लिक के लिए यूजफुल है, तो हम लोग कॉपीराइट बोर्ड के पास अप्लाई कर सकते हैं, और कॉपीराइट बोर्ड फिर उस पर्टिकुलर वर्क को पब्लिश करो, इस चीज के लिए क्या कर सकता है? कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट कर सकता है. देन नेक्स्ट वन देखो,
मैंने आपको कल या परसों शायद बताया होगा, नहीं तो देखो, व्हेन वी असाइन आवर कॉपीराइट, हाँ, वी ट्रांसफर आवर कॉपीराइट और वी गिव द लाइसेंस ऑफ द कॉपीराइट, जो फीस हम इन रिटर्न लेते हैं ना, उसको फीस नहीं बोलना है, हाँ. Technically, the consideration we take for the assignment or transfer of the copyright is technically known as a royalty. क्या बोला जाता है उसको? Royalty ली है, हाँ. Now see, fix the rate of a royalty in relating to the sound recording, हाँ, version etc. ये भी अधिकार किसको दिया हुआ है? कॉपीराइट बोर्ड को दिया हुआ है, हाँ. So in all, there are certain special issues only which can be referred to the, किसको रेफर किए जा सकते हैं? कॉपीराइट बोर्ड को रेफर किए जा सकते हैं, हाँ. See, all other general routine issues regarding the copyright can't be referred to the copyright board, हाँ. जैसे सिंपल, किसी ने मेरे बुक पे बेसिस पे मूवी बनाई है, हाँ, तो उसकी कंप्लेंट डायरेक्टली कॉपीराइट बोर्ड के पास नहीं जाएगी, उसकी कंप्लेंट कहाँ पे जाएगी? हमारे रूटीन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे उसकी कंप्लेंट जाएगी. जो अभी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, हाँ, जो चैप्टर 2 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट के अंदर दिए हुए उतने ही पॉइंट्स का जुरिस्डिक्शन किसको दिया गया है? कॉपीराइट बोर्ड को दिया गया है वहां पे, हाँ. सो गॉट द पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर इशू, हाँ, as relating to the administration of the copyright, especially you are going to talk about copyright board, register of the copyright and that advisory council for the copyright, हाँ. एक छोटा सा पॉइंट आ जाता है ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉपीराइट को लेकर वहां पे, हाँ. बट सी, for Shivaji University syllabus, this point of the administration of the copyright is not there, huh? But from the knowledge point of view, if you have learned the Copyright Act, huh, and you don't know who copyright board, then your knowledge must be lacking knowledge, huh? So therefore, I have cleared you with this particular concept of the copyright board. Okay. Now the next point today we are going to deal, which is a very very important from the point of view of the knowledge also, and it is a very very important from the point of view of the examination also. अगर आपकी एग्जाम होती है शिवाजी यूनिवर्सिटी की, हाँ, तो ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है पेपर में, उसका नाम है असाइनमेंट ऑफ द कॉपीराइट, हाँ. They have many times asked you the question in the paper, define assignment and state the procedure for the assignment of the copyright. Okay, so the very next point from the knowledge point of view as an advocate working in the intellectual property right also, and as well as a student also, this question is a very important. What is that? Assignment of the copyright. Now you may ask me the very first point regarding this, what is meant by this word assignment, huh? See, before going to the word assignment, what I want to tell you is that, did you know that same features which are there to our common property, these features are also there to the intellectual property also, huh? Very first day itself I have told you, suppose I am residing in this particular house, huh, and this house belongs to the me, huh? अगर ये घर मेरे ओनरशिप का घर है, मेरा घर है, हाँ, तो इस घर को मैं जिससे चाहूँ बेचूं, मैं बेच सकती हूँ, हाँ. अगर मैं चाहूँ इसको किसी को किराए पे दे दूं, हाँ, रेंटल दे दूं, लीज पे दे दूं, मैं इसको लीज पे भी दे सकती हूँ, हाँ. किसी को गिफ्ट कर दूं, मैं गिफ्ट कर सकती हूँ, हाँ. सो ऑल दिस थिंग्स पर्टिकुलरली कॉल्ड एज अ ट्रांसफर. याद है, ऑलरेडी यू हैव स्टडीड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सबने स्टडी किया हुआ है आप में से, हाँ. सो आपको पता है प्रोविजन. ओके, अगर नॉर्मल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम लोग, हाँ, जो टैंजिबल प्रॉपर्टी हमारी, उसकी अगर बात कर रहे हैं, तो दैट प्रॉपर्टी इज असाइनेबल, राइट. सो हाँ, हम लोग उसका गिफ्ट कर सकते हैं, किसी को लीज पे दे सकते हैं, किसी को ओनरशिप दे सकते हैं उसकी, हाँ. नाउ आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, whether same rule applies to the intellectual property also. Then answer is a yes. अगर मैंने कोई नॉवेल लिखा है, कोई बुक लिखा है, कोई ड्रामा प्रोड्यूस किया है, कोई मूवी बनाई है, कोई पोएट्री बुक लिखा है, हाँ, कोई म्यूजिक कंपोज किया है, तो ये सारी क्या है बोलो, मेरी प्रॉपर्टी है, हाँ. एंड इस प्रॉपर्टी पे मुझे क्या मिल चुका है? कॉपीराइट है मुझे, हाँ. तो मैं ये प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर कर सकती हूँ क्या? तो आंसर इज ए यस, हाँ. आई कैन ट्रांसफर दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी टू एनीबडी, हाँ. नाउ दिस ट्रांसफर may happen by 4 ways. ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, ये कितने टाइप से हो सकता है? देखो, 4 तरीके से ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है. विच वन प्रॉपर्टी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हाँ. नंबर 1, ट्रांसफर बाय असाइनमेंट. नंबर 1, ट्रांसफर बाय असाइनमेंट, हाँ, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं. नंबर 2, ट्रांसफर बाय विल. नंबर 3, ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, हाँ. एंड नंबर 4,
transfer by the grant of license including compulsory license. What are the 4 ways in which a copyright can be transferred? Got the point? Number 1, transfer by assignment. असाइन करना मतलब अपने पूरे ओनरशिप के अधिकार किसी और को दे देना. दैट इज ट्रांसफर बाय असाइनमेंट हो जाएगा. सेम चीज मैंने अपने विल में लिखी है कि ये बुक मैंने लिखा हुआ है और इस बुक के जो भी बेनिफिट्स आते हैं उसके पूरे पूरे अधिकार मेरे डेथ के बाद माय ब्रदर इज गोइंग टू गेट दैट पर्टिकुलर ऑल राइट्स, ऐसे मैंने अपने विल में लिख के रखा है. तो इसका मतलब मैंने अपना कॉपीराइट कैसे ट्रांसफर किया? बोलो ट्रांसफर बाय विल. गेटिंग द पॉइंट. फर्स्ट वन इज अ ट्रांसफर बाय असाइनमेंट, जिसमें मैं प्योरली खुद होके वॉलंटरीली अपने अधिकार किसी और को क्या कर रही हो, वहां पे ट्रांसफर करी हो. से फॉर एग्जांपल नाउ सपोज आई हैव रिटन अ पर्टिकुलर बुक एंड बीइंग ऑन अ वन पर्टिकुलर प्लेस इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डील विद ऑल इश्यूज. तो मैंने क्या कर दिया, अपने एक फ्रेंड को उसके सारे अधिकार असाइन कर दिए. बुक तो लिखा मैंने, नाम मेरा रह गया बुक का ऑथर बतौर, बट उसकी ओनरशिप मैंने अपने एक फ्रेंड को क्या कर दी, पूरी ट्रांसफर कर दी वहां पे. उससे कुछ रॉयल्टी उसके लिए ले ली और उसको पूरे अधिकार उस बुक को लेकर क्या कर दिए, मैंने दे दिए कि आज से आगे ये बुक आपके ओनरशिप का हो गया वहां पे. दिस इज कंसिडर्ड एज अ, क्या कंसिडर किया जाएगा, ध्यान में रहा, ट्रांसफर बाय असाइनमेंट. नंबर 2 क्या बताया आपको, ट्रांसफर बाय विल. इसका एग्जांपल आपको बताया मैंने कि मैंने एक बुक लिखा है और उस बुक की मुझे अच्छी खासी रिटर्न्स आती है हमेशा और अब मुझे विल करनी है अपनी. तो मैंने विल कर दी और उस विल में मैंने बाकी प्रॉपर्टी के साथ में ये मेंशन किया कि आफ्टर माय डेथ व्हाटएवर मॉनेटरी बेनिफिट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक विल बी ट्रांसफर्ड टू माय ब्रदर. तो इसे क्या बोला जाएगा, असाइनमेंट. इसे क्या बोला जाएगा, ट्रांसफर ऑफ कॉपीराइट बाय विल कंसिडर किया जाएगा. देन नंबर 3 पॉइंट क्या था, देखो, ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ अ लॉ. नंबर 3 पॉइंट क्या आ रहा है, ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ अ लॉ. इसका मतलब क्या, देखो, ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ का सेम एग्जाम्पल है वापस. आई हैव रिटन अ बुक, ओके, नाउ आई एम गेटिंग अ लॉट मॉनेटरी बेनिफिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बुक, एंड सडनली समथिंग हैपेंड टू मी, एंड सपोज समझो मेरी डेथ हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली मेरे लीगल हायर कौन बन जाएंगे, बोलो, माय फादर एंड मदर विल बिकम माय फर्स्ट लीगल हायर, एंड दे विल गेट द राइट ओवर दैट पर्टिकुलर बुक. पूरा जो उसका मॉनेटरी बेनिफिट है अब एक फीमेल डाइंग इंटरेस्टेड के फॉर्म में बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ किसको मिलेगा, बोलो, वहां पे टू माय मदर एंड माय फादर. ओके, गेटिंग द पॉइंट. सो उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, बोलो, ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कंसीडर करेंगे. एंड लास्ट पॉइंट जो अभी अभी आपको बताया था मैंने, ग्रांट ऑफ लाइसेंस इंक्लूडिंग कंपल्सरी लाइसेंस. कंपल्सरी लाइसेंस तो आपको बताया मैंने. कंपल्सरी लाइसेंस कब दिया जाता है, कोई पर्टिकुलर पर्सन कोई वर्क प्रोड्यूस करके भी, कोई क्रिएटिविटी बना के भी वो पब्लिक को बेनिफिशियल होते हुए भी पब्लिक के साथ शेयर नहीं कर रहा, उसको पब्लिश करने की परमिशन नहीं दे रहा, तो कोई भी रिलेटेड पर्सन कॉपीराइट बोर्ड के पास एप्लीकेशन कर सकता है कि आप उसको बोलो और उसका कंपल्सरी लाइसेंस हमें अरेंज करके दो. तो इवन कॉपीराइट बोर्ड सारे सर्कमस्टेंसेस को स्टडी करने के बाद उसका क्या ग्रांट कर सकता है, कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट कर सकता है. सो दैट इज कंपल्सरी लाइसेंस वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है. और लाइसेंस कब मिलेगा, देखो, यहाँ पे ना एक छोटा सा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये भी स्टडी करना है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट एंड ट्रांसफर? व्हाट इज द पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड, असाइनमेंट और ट्रांसफर के बीच में क्या डिफरेंस है. Actually you are not now with me, if you have been on face to face, definitely I have got an answer from you all. What is the difference between assignment and transfer? देखो, असाइनमेंट में ना हम लोग पूरी ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हैं. मतलब मेरे उस बुक से रिलेटेड सारे ओनरशिप राइट मैंने अपने उस फ्रेंड को क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए. तो वो क्या थी, बोलो, वहां पे असाइनमेंट थी. और ये जो कंसेप्ट है ना लाइसेंस, हैव यू हर्ड द वर्ड ड्राइविंग लाइसेंस, और कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलग अलग लाइसेंस होते हैं. शॉप एक्ट का लाइसेंस होता है. अब लाइसेंस क्या, बताओ, लाइसेंस सिंपली इज अ परमिशन. एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए कोई एक पर्टिकुलर चीज करने के लिए हम उस सामने वाले को जो परमिशन देते हैं उसे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, बोलो, लाइसेंस कंसीडर करते हैं. अभी आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिया, इसका मतलब दुनिया के सारे रोड की ओनरशिप आपको दी है क्या, वहां पे नहीं. आपको बस गाड़ी चलाने की वो परमिशन है. मतलब एक पर्टिकुलर एक्टिविटी
जो अदरवाइज अलाउड नहीं होती, हाँ, लाइसेंस की वजह से करने के लिए आपको अलाउड है, उसे हम लोग क्या कंसिडर करते हैं बोलो, दैट इज कंसिडर्ड एज अ लाइसेंस। हाँ, तो लाइसेंस जो है ना वो एक सिंपल परमिशन है, याद रखो। हाँ, लाइसेंस को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, ओनली सिंपल परमिशन। हाँ, तो कॉपीराइट का असाइनमेंट भी होता है और कॉपीराइट का लाइसेंस भी होता है। लाइसेंस देंगे मतलब देखो फॉर एग्जांपल अभी, हाँ, again I have written a particular book, okay, and I have given a license to a particular publication house, for the purpose of only publishing the copies of my book. Nothing other right I have given, not editing or not any changes, only what right I have given, I have given you the permission to publish my book. मतलब उतना ही पर्टिकुलर पार्ट करने के लिए मैंने उनको परमिशन दी है, तो उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, लाइसेंस कंसिडर करेंगे। हाँ, सो इन ऑल आपको ध्यान में आ रहा है, transfer of the copyright can be by assignment, it can be by will, it can be by operation of a law, and it can be by license, including इसमें क्या आ जाता है, compulsory license। हाँ, हमें बेसिकली किससे फटाफट डील करना है, असाइनमेंट ऑफ द कॉपीराइट से डील करना है। हाँ, नाउ योर कॉपीराइट एक्ट 1957 सेक्शन 18, 19, 19A, हाँ, दे ऑल डील विद द, किससे डील करते हैं, असाइनमेंट ऑफ द कॉपीराइट से डील करते हैं। हाँ, असाइनमेंट में जो असाइन करता है ना उसको बोला जाता है असाइनर, और जिसको असाइन किया जाता है ना उसको क्या बोला जाता है, असाइनी, और जिस वर्क को आपने किसी और को असाइन किया है उसको बोला जाता है असाइन्ड वर्क। 3 वर्ड, हाँ, असाइनर, असाइनी एंड असाइन्ड वर्क। हाँ, हमारे लिए लॉयर्स के लिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट होंगे। हाँ, क्योंकि अगर कल जाके आपको कॉपीराइट असाइनमेंट का ड्राफ्ट, हाँ, ड्राफ्टिंग करना पड़ता है, तो यू नीड टू नो द वर्ड्स, ओके, जैसे सेलर बायर हमें पता होता है, डोनर डोनी हमें पता होता है। हाँ, वैसे ही अगर असाइनमेंट का ड्राफ्ट कल एज एडवोकेट आप ड्राफ्ट कर रहे हो, हाँ, तो आपको नाम पता होना चाहिए, राइट। सो हु असाइंस विल बी कंसिडर्ड एज अ असाइनर। हाँ, जिसको आपने वो वर्क के अधिकार पूरे असाइन किए, ही विल बी कंसिडर्ड एज अ असाइनी, एंड जिस वर्क को आपने असाइन किया है ना, that work will be considered as a assigned work. Now, section 19 of a copyright act gives you the mode of assignment. Mode of assignment को इसमें दिया बोलो, section 19 of the copyright act के अंदर दिया हुआ है। हाँ, देखो क्या बोला वहां पे, assignment, हाँ, to be valid, हाँ, should be in a writing only. assignment कब valid होगा बोलो, अगर वो writing में है, signed by assigner or his duly authorized agent। हाँ, getting the point। assignment of the copyright कब valid होगा बोलो, नंबर 1 पॉइंट, इट मस्ट बी क्या चाहिए, साइन्ड चाहिए, रिटर्न चाहिए, और सिग्नेचर किसकी चाहिए वहां पे ध्यान में रहे आपको, या तो असाइनर की खुद की सिग्नेचर चाहिए या फिर उसके किसी ऑथोराइज्ड एजेंट की सिग्नेचर उस पे चाहिए। हाँ, देन नंबर 2 देखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, अगेन द असाइनमेंट इंस्ट्रूमेंट शैल आइडेंटिफाई द वर्क and specify the rights assigned, duration and territorial extent। 4 पॉइंट नोट डाउन करके रखो। हाँ, असाइनमेंट इंस्ट्रूमेंट में 4 चीजें मेंशन करना मस्ट है। नंबर 1, आइडेंटिटी ऑफ द वर्क। हाँ, व्हाट यू हैव असाइन्ड, is it a novel, is it a drama, is it a poetry book, is it a cinematograph work, it is a sound recording, क्या असाइन करे हो, किस टाइप का वर्क आपने बनाया है, दैट इज आइडेंटिटी ऑफ द वर्क। हाँ, नंबर 1। नंबर 2 क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा, देखो उसमें राइट्स असाइन्ड, क्या क्या अधिकार दिए आपने। हाँ, उसमें एडिट करने का अधिकार दिया है, उसके कॉपीज बनाने का अधिकार दिया है, उसको ट्रांसलेट करने का अधिकार दिया है, उसको रिप्रोड्यूस इन अदर फॉर्म करने का अधिकार दिया है। What are the rights you have assigned? That must be specified. Number 3, for how much years you have assigned. Okay, is it an assignment for 3 years? Is it an assignment for 2 years? Is it an assignment for 5 years? How much years you have make an assignment? That also you have put out in that particular document. And finally, आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा, देखो टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द असाइनमेंट मेंशन करना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट, लाइक से फॉर एग्जांपल, only the assignment to assign is given within Maharashtra, or it is given in a Maharashtra and Karnataka, or it is given in a Maharashtra and Goa, or it is given in a entire India. So whatever may be your territorial extent, but you have to specify that territorial extent in the assignment instrument। assignment instrument return चाहिए, assigner या उसके authorized agent की sign चाहिए। then वो 4 चीजें आपको mention करना जरूरी है, type of work, rights assigned, duration और टेरिटोरियल एक्सटेंट। हाँ,
देन नेक्स्ट वन देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या जाता है, हाँ असाइनमेंट जनरली तो कोई फ्री नहीं करेगा ना, इतनी मेहनत लेके हम बुक बनाएंगे, लिखेंगे, मूवी बनाएंगे, तो हम लोग रॉयल्टी इन रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे असाइनमेंट करते हुए, हाँ तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असाइनमेंट शैल आल्सो स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इफ एनी टू द ऑथर और इज लीगल हायर। हाँ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असाइनमेंट में कंपलसरी क्या लिखना पड़ेगा, अगर रॉयल्टी की अमाउंट डिसाइडेड है तो वो रॉयल्टी की अमाउंट जो भी है वो डिसाइडेड अमाउंट क्या करनी पड़ेगी, आपको वहां पे मेंशन करनी पड़ेगी वहां पे। हाँ देखो आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, समझो मैंने एक बुक लिखा, हाँ और वो बुक लिखने के बाद मैंने उसके पूरे अधिकार मैंने क्या कर दिया, एज ऑलरेडी टोल्ड यू, असाइन कर दिए मेरे एक फ्रेंड को वहां पे, हाँ और उसको बोल दिया कि इसका रिप्रोडक्शन, एडिटिंग, पब्लिशिंग, ट्रांसलेशन जो भी करना आप सारी चीजें करो, आपको मैंने अधिकार असाइन कर दिए वहां पे। Now from the day I assigned that rights to my friend, up to 1 year my friend didn't exercise any right over that assignment। हाँ मेरे फ्रेंड ने उसको असाइनमेंट ऑफ माय कॉपीराइट करने के बाद में भी 1 साल हो गया फिर भी कुछ नहीं किया है, तो याद रखो वो असाइनमेंट ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाता है, क्योंकि वो आइडल पड़ा रहा ना, बिन काम का पड़ा रहा वहां पे। हाँ सो इट इज नेसेसरी कि वो असाइनमेंट आपके नाम पे लेने के बाद असाइनी उस असाइनमेंट पे 1 साल के अंदर अंदर अपना वर्क क्या कर दे, शुरू कर दे। अगर वो नहीं शुरू करता है विद इन 1 year ऑफ द असाइनमेंट, तो असाइनमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। हाँ नाउ नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द असाइनमेंट ऑफ द कॉपीराइट इज दैट वन। हाँ अगर ऊपर याद है हमने डिस्कस किया था कि असाइनमेंट इंस्ट्रूमेंट में हाउ मच ईयर्स के लिए आप असाइनमेंट कर रहे हो वो मेंशन करना जरूरी है, ये हमने वहां पे क्या किया, डिस्कस किया। हाँ अगर समझो आपने वो असाइनमेंट पीरियड मेंशन नहीं किया है समझो, तो ना लॉ इम्प्लाइड पीरियड है वहां पे, द पीरियड शैल बी डीम्ड टू बी 5 year फ्रॉम द डेट ऑफ असाइनमेंट। असाइनमेंट डेट से कितने साल तक का पीरियड रहेगा समझो, 1 year। Sorry, yeah, 5 year will be the period. When the period of assignment is not stated, then the period shall be deemed to be 5 year from the date of assignment। अगर कुछ पीरियड मेंशन नहीं है ना तो इम्प्लाइड पीरियड है, लॉ ने दिया हुआ, that is how much year it will be considered as a 5 year period will be considered as a period of assignment। ठीक है, and final point which is stated in this particular section is that one, अगर हमने हमारे असाइनमेंट इंस्ट्रूमेंट में टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द राइट ऑफ असाइनमेंट इज नॉट मेंशनड, नॉट स्पेसिफाइड, उसको स्पेसिफाई नहीं किया है, तो इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट द टेरिटोरियल एक्सटेंट शैल बी विद इन द इंडिया। हाँ पूरे इंडिया में हाँ वो कॉपीराइट अधिकार हमने उस असाइनी को क्या कर दिया, असाइन कर दिया, ऐसे कंसिडर वहां पे किया जाएगा। ध्यान में आपको पूरे पॉइंट सारे। हाँ सो असाइनमेंट कैसा होना चाहिए, हाँ ये डिटेल्स हमने क्या किया यहाँ पे डिस्कस किया। हाँ सो व्हाट इज दैट, इज देयर एनी फॉर्म नंबर ऑफ असाइनमेंट, हाँ मे बी अनदर क्वेश्चन व्हिच मे बी आस्क्ड बाय एनी स्टूडेंट। हाँ द आंसर इज नो, देयर इज नो एनी स्पेसिफिक फॉर्म नंबर कि भाई ये फॉर्म नंबर भरो तो ये असाइनमेंट होता है, या देयर इज नो एनी स्पेसिफिक फॉर्मेट आल्सो, जैसे हमारे रिटन स्टेटमेंट का, प्लेंट का, एफिडेविट का एक फॉर्मेट होता है ना ड्राफ्टिंग का। हाँ तो यहाँ पे क्या असाइनमेंट इंस्ट्रूमेंट का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट है क्या, द आंसर इज नो। हाँ असाइनमेंट इंस्ट्रूमेंट का कोई फॉर्मेट नहीं है। हाँ ओनली थिंग इज दैट असाइनमेंट अगर ओरल होता है ना तो वैलिड नहीं होगा। हाँ असाइनमेंट रिटन चाहिए, असाइनर या उसके ऑथराइज एजेंट की साइन चाहिए। हाँ असाइनमेंट इंस्ट्रूमेंट में वर्क की आइडेंटिटी, राइट्स असाइनड, ड्यूरेशन and territorial extent and the royalty payable। all these particular points are covered, then assignment will be considered as a valid। assignment को क्या consider किया जाएगा, valid consider किया जाएगा। हमारे कॉपीराइट एक्ट सेक्शन 18 सब क्लॉज 1 में ना और एक इंटरेस्टिंग इशू असाइनमेंट से रिलेटेड कंसिडर किया है। देखो समझो मैं कोई एक नया बुक लिख रही हूँ, हाँ सपोज आई एम राइटिंग अ पर्टिकुलर न्यू बुक। हाँ कैन द राइट्स ऑफ दैट न्यू बुक में बी असाइन्ड, getting the question what I'm asking you। Suppose I'm writing a particular new book, and is it necessary or is it possible that I can assign the rights of a book which is yet not written? Okay, किसी future work को assign किया जा सकता है क्या, जो बुक मैंने अभी अभी लिखना शुरू किया है जो अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ। हाँ तो देखो जो फेमस ऑथर्स होते हैं ना, उन फेमस ऑथर्स के बुक के लिए जो पब्लिशर होते हैं वो वहां पे ना वेटिंग लिस्ट में खड़े होते हैं। हाँ सो यस अ फ्यूचर वर्क हाँ कैन बी असाइन्ड, फ्यूचर वर्क को असाइन किया जा सकता है। हाँ रितेश नोट डाउन, फ्यूचर वर्क को भी क्या किया जा सकता है, असाइन किया जा सकता है वहां पे। हाँ सेम चीज वो वर्क एक्चुअल में
आना चाहिए, तभी उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। सेल एन एग्रीमेंट टू सेल याद है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, सेल एन एग्रीमेंट टू सेल। सेम वे अगर आप एग्रीमेंट टू सेल करते हो ना तो वो वैलिड ही होता है ना, बस ओनली थिंग इज दैट वन वो जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही हाँ, एक फ्यूचर वर्क जो अभी इन प्रेजेंस आया भी नहीं है, हाँ एग्जिस्टेंस में आया भी नहीं है, उसको असाइन किया जा सकता है, तो आंसर इज यस। हाँ, इट कैन बी असाइन, बट रूल वापस वही होंगे फ्यूचर वर्क को असाइन करने के लिए भी। हाँ, कि बाबा वो वर्क फ्यूचर में ही सही बट इन एग्जिस्टेंस आना चाहिए। हाँ, देन इसको हम लोग इक्विटेबल असाइनमेंट बोलते हैं, क्योंकि अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है, इसको नाम दिया गया है इक्विटेबल असाइनमेंट। हाँ, और जो डिस्प्यूट्स है, हाँ असाइनमेंट को लेकर, फ्यूचर असाइनमेंट को लेकर, इसके सारे अधिकार किसको दिए याद है, थोड़ी देर पहले बताया था। असाइनमेंट का पूरा पूरा अधिकार किसको दिया हुआ है, रिमेम्बर, कॉपीराइट बोर्ड। हाँ, असाइनमेंट का डिस्प्यूट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाएगा, असाइनमेंट का डिस्प्यूट किसके पास जाएगा, कॉपीराइट हाँ बोर्ड के पास क्या हो जाएगा, असाइनमेंट का डिस्प्यूट वहां पे जाएगा। हाँ, सी फर्दर, हाँ the one of the famous case on this particular point of the assignment we will deal, and then we will proceed to the another points. The famous case on this point is the Saregama India Limited versus Suresh Jindal and others. One of the famous case on the issues relating to the assignment is the Saregama India Limited versus सुरेश जिंदाल एंड अदर। हाँ, क्या हो गया था देखो इस पर्टिकुलर केस में। हाँ, सारेगामापा को had disregarded the term of assignment agreement with respect to the payment of royalty. सारेगामापा को सुरेश जिंदाल एंड अदर ने अपने कुछ म्यूजिकल वर्क का अधिकार क्या किया था, असाइन किया हुआ था, और उस असाइनमेंट एग्रीमेंट में ना रॉयल्टी को लेकर जो टर्म थे वो रॉयल्टी को लेकर टर्म उन्होंने क्या किए थे, वॉयलेट कर दिए थे, इसीलिए सूट फाइल कर दी थी फॉर द कैंसिलेशन ऑफ असाइनमेंट। हाँ, तो इट वाज हेल्ड कि यस इनको जो रॉयल्टी डिसाइडेड है वो आपने पे नहीं किए, तो नॉन पेमेंट ऑफ रॉयल्टी के बेसिस पे असाइनमेंट जो ग्रांट किया है वो असाइनमेंट क्या हो सकता है बोलो, कैंसल हो सकता है। हाँ, so got the all provisions relating to the assignment. Section 17, 18, 19, all sections we have discussed as relating to the assignment of the copyright, which is a VIP question for the paper, as I already told you. Now, transmission of copyright by operation of a law. Already I have discussed with you this concept. Section 20 is the section which deal transmission by operation of a law. अगर मैंने एक किताब लिखा है, मुझे उसका मॉनेटरी बेनिफिट भी अच्छा खासा मिल रहा है, हाँ, और सडनली मुझे कुछ हो जाता है, मेरी डेथ वगैरह हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली उसका कॉपीराइट मेरे लीगल हायर्स पे क्या हो जाता है बोलो, ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ कॉपीराइट बाय ऑपरेशन ऑफ अ लॉ, सेक्शन 20। हाँ, द प्रोविजन इज व्हेन द ओनर ऑफ द कॉपीराइट, whether work is a published or unpublished, dies, owner of the copyright dies, the copyright will pass to his legal representative as a part of the estate। अगर उसके प्रॉपर्टी न होती तो जैसे उसकी लीगल हायर्स को जाती, वैसे उसका ये जो कॉपीराइट है, ये कॉपीराइट भी किसको ट्रांसफर हो जाएगा बोलो, उसके लीगल हायर्स को ट्रांसफर हो जाएगा वहां पे। हाँ, एंड इन द ट्रांसफर ऑफ द कॉपीराइट द लास्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डील is a relinquishment of the copyright। हाँ, relinquishment of the copyright मतलब ना, मैंने जो भी किया है, हाँ क्रिएटिव वर्क, राइट, ड्रामा है, म्यूजिक है, नॉवेल है, सिनेमा है, साउंड रिकॉर्डिंग है, जो भी किया है उस पे मुझे कॉपीराइट है, मैंने आपको बताया, वेदर इट इज रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड। हाँ, somebody above has asked a question also कि whether registration of copyright is a compulsory. Yesterday itself I have given an answer, no, registration of copyright is not compulsory। हाँ, but if you get registered your copyright, it will be a ownership evidence। आपको आपकी ओनरशिप प्रूव करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इसकी वजह से इट्स बेटर कि आप कॉपीराइट को क्या करके लो, रजिस्टर वहां पे करके लो। हाँ, सो द लास्ट पॉइंट वी वर डीलिंग इन द असाइनमेंट ऑफ द कॉपीराइट इज दैट, समझो मेरा कॉपीराइट रजिस्टर्ड है नॉट रजिस्टर्ड है डजंट मैटर। हाँ, लेकिन यहाँ पे ना अगर हाँ मेरा एक पर्टिकुलर कॉपीराइट रजिस्टर्ड भी है, तो क्या मैं उस कॉपीराइट जो मेरे वर्क पे मुझे है उसको छोड़ सकते हो, रेलिंक्वेंश कर सकते हो। हाँ, कैन आई लीव, LEAVE वाला, हाँ, कैन आई लीव द राइट्स व्हिच आई हैव ओवर माय कॉपीराइट। हाँ, द आंसर इज अ यस। हाँ, आपके कॉपीराइट
टेड वर्क पे हाँ आपको जो भी अधिकार है आप छोड़ सकते हो क्या? तो यस, जैसे मैं अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकती हूँ ना, सेम वैसे ही है उधर मेरा जो भी उस पर्टिकुलर मेरे क्रिएशंस पे मेरा अधिकार था, क्या वो अधिकार मैं छोड़ दे सकती हूँ? आंसर इज ए यस, आई कैन रिलीज, I can relinquish the rights which I have over my work which I have created. Now, I think almost many students are from Maharashtra only. 3-4 students from actually Punjab University hear the lecture. They have messaged me, and therefore actually I'm alternative language I'm using is a Hindi, because first day I have used Marathi and they requested me that please don't use Marathi and try to give alternative language Hindi. So actually I'm using an alternative language Hindi. So we are on a point कि क्या वो relinquish किए जाते हैं, इसका एक एग्जांपल ले रहे थे हम लोग, बट मेजॉरिटी स्टूडेंट जो है ना वो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स हैं, सबको आपको पीएल देशपांडे फेमस ऑथर आपको सबको पता है हाँ, तो उन्होंने अपना जो भी क्रिएशन था ना विच इज वेरी वेरी गुड क्रिएशन विच इज क्रिएटेड बाय हिम हाँ, उस सब पे अपने जो अधिकार थे वो उन्होंने सारे छोड़ दिए थे हाँ, मतलब रेलिंक्वेंश कर दिए थे। इसका मतलब ना पीएल देशपांडे इनका कोई भी हाँ अगर आप वर्क यूज करना चाहते हो, लाइक उनका कोई भी लिखा हुआ नॉवेल आप रिसाइट करना चाहते हो हाँ, तो आपको किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है वहां पे हाँ, you can go and you can perform on whatever work he has created because he has relinquished the right which he had over the copyright creations he created. Okay, so here हमारा क्या पॉइंट खत्म हो जाता है बोलो, असाइनमेंट ऑफ द कॉपीराइट जो पॉइंट है ये पूरा हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है हाँ। नाउ the last point from this particular chapter which we are going to discuss which is a important part also infringement of the copyright from the examination point of view again this is a very very important question frequently copyright acts है ना, copyright का assignment, copyright का infringement, remedies for the copyright infringement, ये क्वेश्चन पेपर में क्या किए frequently पूछे गए। ओके, सो अगेन फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू this part infringement of the copyright, and again soon you are going to enter into the profession of the lawyers, okay, advocates. So एक advocate के लिए भी सबसे important part तो यही होगा ना कि copyright infringement कब कब होता है, copyright infringement कब कब नहीं होता है, और अगर copyright infringement है हुआ है तो आपको आपके क्लाइंट को रेमेडीज सजेस्ट करने पड़ेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस उनके पास है on the violation of the copyright. Okay, so the last and very important part of the Copyright Act from examination point of view is an important infringement of the copyright and the remedies therefore हाँ, बस ना वो रेमेडीज को आपके सिलेबस में रेमेडीज नहीं बोला हाँ, कॉपीराइट जस्टिस एस्पेक्ट ऐसे बोला है, तो आप वहां पे याद रखना कि कॉपीराइट जस्टिस एस्पेक्ट मतलब ही आपको क्या याद रखना है, रेमेडीज फॉर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट हाँ। नाउ जो न्यूली रीड आउट कर रहे हैं ना यहाँ पे हाँ, या न्यूली ज्वाइन है उनको वापस एक बार एक चीज बता देती हूँ, नॉर्मली हम लोग लॉ में ना जब लॉ ब्रेक होता है हाँ, कोई राइट आपका कोई तोड़ देता है हाँ, तो हम लोग जो एक लीगल इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं वो लीगल इंग्लिश वर्ड हम लोग क्या यूज करते हैं, याद है, वॉयलेट। जब भी कोई हमारा कोई राइट ब्रेक हो जाता है, ब्रीच हो जाता है, तो हम क्या बोल देते हैं वहां पे, उसने लॉ वॉयलेट कर दिया हाँ। लेकिन ना आईपीआर में वॉयलेट वर्ड नहीं होगा हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में जनरली जो वर्ड यूज किया जाता है ना दैट इज इन्फ्रिंजमेंट, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द ट्रेडमार्क हाँ। सो जनरली जो आईपीआर में इन ओवरऑल जो वर्ड यूज किया जाएगा वो क्या यूज किया जाएगा, इन्फ्रिंजमेंट इज द वर्ड विच इज जनरली गोइंग टू बी यूज्ड हियर हाँ। लेकिन बस एक अलग है वर्ड दैट इज डिजाइन एक्ट हाँ, डिजाइन की अगर कोई चोरी करता है ना हमारे, तो डिजाइन का इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता है, डिजाइन की होती है पायरेसी। अगर डिजाइन एक्ट है तो वर्ड क्या यूज करोगे, पायरेसी, और अगर अपोजिट साइड अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आर देयर देन व्हिच वर्ड यू आर गोइंग टू यूज, दैट इज इन्फ्रिंजमेंट। तो इन ऑल आपको ध्यान में आएगा, आपके परमिशन के बिना आपके क्रिएटिव वर्क को अनऑथराइजली यूज करना मतलब क्या कंसीडर किया जाता है वहां पे, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट कंसीडर किया जाता है वहां पे हाँ। देन देखो वी विल डील इन अ डिटेल अबाउट दैट वन हाँ, कौन सा टॉपिक दिख रहा है हम लोग ध्यान में, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट हाँ। एग्जैक्टली आपके कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट किस टाइप से होगा ये इस पे डिपेंड करता है कि आपका कॉपीराइट किस टाइप का है हाँ। बट एक कॉमन मीनिंग क्या बता सकते हैं पता हम लोग इन्फ्रिंजमेंट का हाँ, इफ एनी पर्सन without the proper authorization of the owner of the copyright
ओनर ऑफ द कॉपीराइट से अथॉरिटी ना लेते हुए हाँ एक्सप्लॉइट हिज वर्क इन अ मैनर सच एज अ रिप्रोडक्शन इन एनी मटेरियल फॉर्म हाँ उसके वर्क को रिप्रोड्यूस करता है उसके परमिशन के बिना हाँ या पब्लिक में परफॉर्म करता है या उसके परमिशन के बिना उसके वर्क को पब्लिक में कम्युनिकेट करता है विद द इंटेंशन ऑफ मॉनेटरी गेन। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड दिमाग में डाल के रखो हाँ। जो भी आप उसके परमिशन के बिना कर रहे हो ना, रिप्रोडक्शन ऑफ द वर्क और performing the work in a public or communication of the work to the public with the intention of gaining the monetary benefit, then it is amounting as a infringement of the copyright। उसको क्या consider किया जाता है बोलो? infringement of the copyright consider किया जाता है हाँ। now of course we are a law student right, so legal definition देखना तो बनती है। यहाँ पे हमने ये तो common definition देख ली कि commonly what is meant by the infringement, unauthorized use of the author's or creator's use without his permission is simply considered as a क्या consider किया जाएगा उसको हाँ infringement of the copyright। but legal definition जो है ना infringement of copyright की वो दी गई है section 51 of the Copyright Act 1957 में। which section deal with the infringement of copyright? Keep out in your mind that is section 51 defines the term infringement। हाँ क्या बोला देखो अब अभी section 51 में हाँ infringement का meaning क्या देखो? when any person without the license, when any person without the license from the owner of the copyright, number one copyright owner से बिना license लेते हुए हाँ और from the registrar of the copyright या फिर license even आपने किससे नहीं लिया, registrar of the copyright से नहीं लिया या फिर हाँ in contravention of the condition of the license, license लिया तो है लेकिन लाइसेंस के कंडीशंस को आपने क्या कर दिया, वॉयलेट कर दिया हाँ और आप कुछ ऐसा करते हो डज एनीथिंग हाँ द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ विच इज ऑन द ओनर ऑफ कॉपीराइट। आप वो चीज कर रहे हो जिसका एक्चुअली करने का अधिकार ओनली किसको बोलो, कॉपीराइट ओनर को है हाँ एंड परमिट फॉर प्रॉफिट हाँ एनी प्लेस टू बी यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ वर्क हाँ। इवन आप अपनी जगह कॉपीराइटेड वर्क को परफॉर्म करने के लिए यूज करने के लिए परमिट करते हो ना, तो भी आप क्या कर रहे हो वहां पे कॉपीराइट वायलेशन आप कर रहे हो। ध्यान में आ रहा है क्या बता रही हूँ? अगर आपने आपकी प्लेस आपकी ओनरशिप की जगह कॉपीराइट वायलेटेड हाँ एक्ट परफॉर्म करने के लिए परमिट कर दिए, यूज करने के लिए दिए, तो आपने भी क्या कर दिया वहां पे कॉपीराइट का वायलेशन कर दिया वहां पे। सो इन ऑल देखो ओनर के परमिशन के बिना या बिना लाइसेंस के हाँ कॉपीराइट वर्क के साथ आप क्या क्या कर रहे हो देखो। नंबर वन हाँ सेल हायर हाँ और लेट फॉर हायर हाँ एनी गुड्स विच आर इन्फ्रिंजिंग कॉपी हाँ। नंबर टू यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्फ्रिंजिंग कॉपी हाँ। नंबर थ्री you are exhibiting to the public the infringing copy हाँ and number four you are importing in India the infringing copy of the work हाँ। infringing copy के साथ क्या क्या किया ध्यान में है? नंबर वन सेल और हायर, नंबर टू infringing copy को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, नंबर थ्री infringing copy को आप एग्जिबिट कर रहे हो इन पब्लिक हाँ एंड नंबर फोर infringing copy को आप इंडिया में क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो। तो इन ऑल सर्कमस्टेंसेस आप क्या कर रहे हो बोलो, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट यहाँ पे कर रहे हो हाँ। बट यहाँ पे ना मुझे आपको एक पॉइंट बताना भी उतना ही जरूरी है हाँ। सो व्हाट इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज दैट वन जो लास्ट पॉइंट डिस्कस किया हमने, इंपोर्ट इन इंडिया एनी इन्फ्रिंजिंग कॉपी, वहां पे एक एक्सेप्शन आता है याद रखना। अगर मेरे अपने प्राइवेट डोमेस्टिक यूज के लिए मैं अगर इंडिया के बाहर से एक सिंगल कॉपी लेके आई हूँ हाँ और वो सिंगल कॉपी जो है ना वो इन्फ्रिंज्ड कॉपी भले ही है फिर भी मैंने इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट नहीं किया क्योंकि मैंने वो लाया है किसी कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं लाया, मैंने वो किसके लिए लाया, अपने ओन प्राइवेट यूज के लिए लाया। और हाउ मेनी कॉपीज आई हैव ब्रॉट दैट वन, ओनली वन कॉपी ओके। तो वहां पे वो एक एक्सेप्शन याद रखना, इंपोर्टिंग इनटू इंडिया द इन्फ्रिंजिंग कॉपी ऑफ द वर्क अमाउंट टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट बट वन एक्सेप्शन इज देयर एंड व्हाट इज दैट एक्सेप्शन, one copy of a work for private and domestic use of the importer will not amount as a infringement हाँ। so एक simply बहुत बार लिया हुआ एग्जांपल ले लेते चलो infringement of copyright का। एक प्रोड्यूसर ने क्या किया, राइटर के परमिशन के बिना हाँ राइटर के नॉवेल पे बेस्ट मूवी बना दी, तो उसने क्या कर दिया बोलो, राइटर के कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट कर दिया और अब वो मूवी मतलब क्या बन जाएगी, इन्फ्रिंज्ड कॉपी बन जाएगी।
अगर एक प्रोड्यूसर ने राइटर के परमिशन के बिना राइटर के नॉवेल पे बेस्ट क्या बना दी, मूवी बना दी, तो वो मूवी क्या बन जाएगी बोलो, इन्फ्रिंज्ड कॉपी। और वो प्रोड्यूसर किसके लिए लायबल होगा, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट के लिए वो क्या हो जाएगा, वहां पे लायबल हो जाएगा। हाँ, सो गॉट द पॉइंट, व्हाट इज मीन बाय द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट। हाँ, एक इंटरेस्टिंग इशू क्या राइज हो गया पता है, एक केस था वाल्टर वर्सेस लेन करके, पुराना इंग्लिश केस है। हाँ, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर केस, वाल्टर वर्सेस लेन करके केस हुआ था, जिसमें क्या हो गया था, एक ओरेटर, वक्ता जो स्पीच देता ना, वो एक जगह पे ना स्पीच दे रहा था। हाँ, और एक रिपोर्टर ने उस ओरेटर की जो भी स्पीच थी ना, उस स्पीच को क्या कर दिया, शॉर्ट हैंड में लिख लिया। जनरली रिपोर्टर्स उस स्किल्ड होते हैं कि शॉर्ट में जो भी वो बड़ी सी स्पीच होती है उसको फटाफट शॉर्ट में वो नोट डाउन करके ले लेते हैं वहां पे। हाँ, और ना फिर उसने वो अपनी भाषा में उसको पंक्चुएशन मार्क वगैरह अच्छे से डाल के उसने टाइम्स न्यूज़पेपर में क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। तो इस केस में ना उसका मटेरियल किसी ने चुरा लिया था। हाँ, और उसने फिर अपना कॉपीराइट वॉयलेशन हो गया करके वहां पे सूट फाइल कर दी। अब जिसने वो उसका मटेरियल चुराया था ना, नाउ व्हाट दैट पर्टिकुलर पर्सन वाज सेइंग दैट, वो कह रहा था कि वो जो भी कंटेंट उसने न्यूज़पेपर में लिखा है वो थोड़ी उसका है, किसी और की स्पीच है ना, और किसी और की स्पीच पे उसने नरेशन करके पेपर में पब्लिश किया है। सो बेसिकली वो ओरिजिनल नहीं था, सो देयरफॉर उसको उस पे कॉपीराइट नहीं था, एंड देयरफॉर मैंने कॉपीराइट का कोई इन्फ्रिंजमेंट किया ही नहीं है, ऐसे जिसने वो चुराया था उसका कहना था। बट ना कोर्ट ने यहाँ पे हेल्ड किया कि रिपोर्टर आर द ऑथर ऑफ पब्लिश स्पीच। हाँ, एंड एज सच ओन द कॉपीराइट इन अ पब्लिश स्पीच, बिकॉज वो स्पीच को नैरेट करके एक न्यूज़पेपर राइटअप बनाने में या आर्टिकल बनाने में उनको अपना ओन स्किल, लेबर, हाँ, जजमेंट अप्लाई करना पड़ता है और उसके बाद वो बनता है। सो यस, ही विल हैव द कॉपीराइट ओवर दैट पर्टिकुलर स्पीच। हाँ, और उसको क्या कंसिडर किया गया, जिसने वो चुराया उसको हेल्ड लायबल पकड़ा गया। किस चीज के लिए हेल्ड लायबल पकड़ा गया, तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के लिए। हाँ, उसको हेल्ड लायबल पकड़ा गया वहां पे। हाँ, देखो, another interesting case as relating to the infringement of copyright is the name of case, note down karo, Star Indian Private Limited versus Leo Burnett India Private Limited. What is the name of a case, note down karke rakha, name of the case here is Star Indian Private Limited versus Leo Burnett India Private Limited. सब लोग आप इस केस से कनेक्ट हो सकते हो आसानी से। आप सबने एक फेमस सीरियल कभी ना कभी तो देखा होगा। हाँ, पसंद आए ना आए, बट कभी ना कभी ना आपने ये फेमस सीरियल देखा होगा। द नेम ऑफ दैट सीरियल इज क्योंकि सास भी कभी बहू थी। यू मस्ट ऑल हैव सीन द सीरियल समवेयर। हाँ, देखो क्या हो गया वहां पे। हाँ, इस केस के फैक्ट्स क्या थे, इस सीरियल के जो सारे स्टारकास्ट थे ना, कौन से सीरियल के, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के जो सारे स्टारकास्ट थे, उन्होंने क्या वो सीरियल आपको पता है किसने प्रोड्यूस की हुई थी, सबको बालाजी टेलीफिल्म्स ने वो सीरियल प्रोड्यूस की हुई थी। हाँ, उस फिल्म के सारे स्टारकास्ट ने एक एडवर्टाइजमेंट में सबने, हाँ, सबने काम किया एक एडवर्टाइजमेंट में। हाँ, और उस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट का जो स्लोगन था, हाँ, एक टाइड डिटर्जेंट के एडवर्टाइजमेंट पे इन्होंने काम किया था, पता है ना, टाइड सोप है, सबको पता होगी। हाँ, तो टाइड डिटर्जेंट की एडवर्टाइजमेंट में इन सबने काम किया था, और उस पर्टिकुलर एडवर्टाइज का स्लोगन क्या पता था वहां पे, स्लोगन था वहां पे क्योंकि बहू भी कभी सास बनेगी करके स्लोगन था। तो अब बालाजी टेलीफिल्म्स ने क्या किया पता है, वहां पे ना सूट फाइल कर दी। किस पे सूट फाइल कर दी, वहां पे लियो बर्नेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पे सूट फाइल कर दी कि आपने हमारा कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट कर दिया है करके। हाँ, तो क्वेश्चन मार्क ऑन अ कोर्ट इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट वाज दैट कैन इट बी कंसिडर्ड एज अ कॉपीराइट वायलेशन। तो कोर्ट ने यहाँ पे, बॉम्बे हाई कोर्ट ने आंसर क्या दिया पता है आपको, कि नो कॉपीराइट ऑफ द स्टार टीवी। यहाँ पे कॉपीराइट स्टार टीवी का है नहीं ऐसा कोई। हाँ, क्योंकि जो वो डिटर्जेंट कंपनी है वो इन सारे एक्टर्स को पे कर रही है प्रॉपर वहां पे। हाँ, और वो एक्टर किसी और सीरियल में काम नहीं कर रहे ना, तो ये उनका फ्री डिसीजन होगा ना कि उनको और कहीं पे काम करना है या नहीं करना है। एडवर्टाइजमेंट तो वो लेंगे ही ना, तो एडवर्टाइजमेंट में काम करने से उनको कोई रोक नहीं है। हाँ, सो देयरफॉर, और उन्होंने उनका कोई एज सच सीरियल आइडिया वहां पे चुराया हुआ नहीं था। हाँ, सो देयरफॉर यहाँ पे कोई कॉपीराइट वॉयलेशन नहीं हुआ है। नेशनल सीन जो है एक पब्लिक डोमेन है। हाँ, और पब्लिक डोमेन पे कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकता है। सो कोर्ट हेल्ड दैट इसमें कॉपीराइट का वॉयलेशन नहीं हुआ है। हाँ,
गेटिंग द पॉइंट? क्या बोला कोर्ट ने कि यहाँ पे कॉपीराइट का वायलेशन नहीं हुआ है। हाँ, सो द पॉइंट हैज बीन दैट यू गॉट, वी आर गॉन थ्रू क्या क्या पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि कब कब कॉपीराइट का वायलेशन होगा, मतलब हमने कौन सी कंसेप्ट डिस्कस कर ली वहां पे, दैट इज इंफ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट। ये कंसेप्ट हमने पूरी की पूरी क्या कर दी वहां पे, डिस्कस कर दी। हाँ, ऐसे ही एक फेमस और एक केस छोटा सा 2 मिनट में बता देती हूँ और अपोजिट साइड चले जाते हैं, फिर एंड कर देंगे कि व्हाट इज इंफ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट का एक लास्ट केस हम लोग यहाँ पे लेते हैं। हाँ, द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर केस वाज दैट, हाँ, मेजॉरिटी क्या होता है पता है, हमारा जो लर्निंग मेथड होता है ना, उसमें ना केस लॉज हम लोग बहुत कम स्टडी करते हैं। ओनली वी गो ऑन प्रोविजंस, वो भी अपने ओन लैंग्वेज में। हाँ, तो आपका नॉलेज बहुत ज्यादा पीछे रह जाता है अनलेस एंड अनटिल आप केस लॉज रीड नहीं करते हो। तब तक आपको वो जो एक कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट है, एक एडवोकेट बनने के लिए जो चीजें जरूरी है, वो चीजें आप में नहीं आ सकती जब तक आप केसेस डील नहीं करते हो। हाँ, सो केस लॉज डील करना पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, सी देखो क्या गया, द नेम ऑफ केसेस दैट इज, हाँ, सॉरी, सेलाडोर प्रोडक्शन लिमिटेड वर्सेस गौरव, हाँ, मेहरोत्रा करके केस था। हाँ, क्या हुआ था देखो इस पर्टिकुलर केस में। हाँ, इस केस का जो डिफेंडेंट है ना, दैट डिफेंडेंट वाज यूजिंग द डोमेन नेम, हाँ, करोड़पति.com। उन्होंने एक वेबसाइट बनाई थी एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर वेबसाइट वाज, द नेम ऑफ दैट वेबसाइट इज अ crorepati.com was the name of the website। हाँ, एंड अंदाजा आ रहा होगा आपको कि ये किससे रिलेट कर रही है वहां पे। हाँ, ऑफ कोर्स जिन्होंने कौन बनेगा करोड़पति टीवी शो डायरेक्ट किया था, उन्होंने इन पे सूट फाइल कर दी कि आपका जो ये वेबसाइट डोमेन नेम है crorepati.com, ये हमारे कौन बनेगा करोड़पति नेम से क्या करता है, आइडेंटिकल है, इसलिए आपने हमारा कॉपीराइट क्या कर दिया, वायलेट कर दिया। और कोर्ट ने भी बोला कि यस इट इज अ वायलेशन ऑफ द कॉपीराइट। हाँ, एंड इंजंक्शन वाज ग्रांटेड इन द फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ के फेवर में इंजंक्शन ग्रांट कर दिया था और क्लियर बोल दिया था कि यस इट इज अमाउंट एज अ वायलेशन ऑफ द कॉपीराइट, इसको कॉपीराइट वायलेशन कंसिडर किया जाएगा। हाँ, नाउ अपोजिट साइड पे आ जाते हैं हम लोग, व्हाट इज नॉट इंफ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट। हाँ, our copyright act, हाँ, section 52 is the section which is giving you the details about कि किससे हम copyright infringement नहीं बोलेंगे। opposite side is there। हाँ, opposite side में क्या दिया है देखो वहां पे। हाँ, copyright act define and let down the parameter of defining determining infringement of the copyright। copyright में क्या क्या आता है ये copyright act ने बताया, बट सेक्शन 52 में हाँ कुछ पॉइंट्स दिए जिसमें उन्होंने बोला है कि कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट कब कब नहीं होगा। देखो, नंबर 1, a fair dealing with the literary, dramatic, musical, artistic work, हाँ, for the purpose of private use। आप किसी लिटरेचर, ड्रामा, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क का फेयर डीलिंग कर रहे हो और वो भी प्राइवेट यूज के लिए कर रहे हो। हाँ, जैसे कि इंक्लूडिंग रिसर्च, हाँ, क्रिटिसिज्म या रिव्यू, हाँ, पर्पस के लिए आप वहां पे कर रहे हो। हाँ, तो यू आर नॉट मेकिंग द वायलेशन ऑफ द कॉपीराइट, आप कॉपीराइट का वायलेशन नहीं कर रहे हो। हाँ, नंबर 2 देखो, पब्लिकेशन इन अ कलेक्शन फॉर द यूज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। हाँ, कुछ बुक्स का रेफरेंस किस में लिए है बोलो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बुक्स को पब्लिश करने के लिए, और वो भी स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए लिया, जिससे आउट ऑफ कोई मॉनेटरी गेन नहीं लेने वाले हैं। हाँ, तो that will also not amount as a violation of the copyright। हाँ, then next one देखो, reproduction by the teacher, हाँ, in the course of instruction or in question paper। अगर कोई एक लॉ रिलेटेड बुक किसी का है और उस बुक के स्टेटमेंट्स अगर किसी टीचर ने यूज किए अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, हाँ, तो क्या वो टीचर कॉपीराइट वायलेशन कर रहा है क्या? आंसर इज नो, द टीचर इज नॉट मेकिंग द कॉपीराइट वायलेशन। अभी देखो ना, हाँ, मैंने भी कितने सारे बुक्स यूज करने के बाद ही आपको ये पढ़ाना शुरू किया होगा ना। सो वेदर आई एम डूइंग द वायलेशन ऑफ द कॉपीराइट? नो, आई एम नॉट डूइंग द वायलेशन ऑफ द कॉपीराइट, बिकॉज हाँ इट इज फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स। हाँ, अभी बहुत सारे बुक्स से हम लोग क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं बुक की मदद से, तो क्या वो कॉपीराइट वायलेशन होगा क्या? नो, क्योंकि टीचर का वहां पे कोई मॉनिटरी गेन अटेन करने का इंटेंशन वहां पे नहीं है। देन नेक्स्ट वन देखो, परफॉर्मेंस इन द कोर्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हाँ, इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। हाँ, किसी नॉवेल वाला मटेरियल, किसी बुक वाला मटेरियल, हाँ, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में परफॉर्म किया गया, तो क्या वो कॉपीराइट वायलेशन हो रहा है क्या वहां पे?
No, it is also not amount as a copyright violation. हाँ. Then next one देखो, reproduction in newspaper and magazine of an article on a current economic, political, social, religious topic in certain circumstances. हाँ, अगर कोई आर्टिकल लिखा गया है हाँ किसी करंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस टॉपिक्स पे हाँ, तो उसमें से कुछ मटेरियल लेके उसको न्यूज़पेपर में वगैरह रिप्रोड्यूस किया गया, मैगजीन में रिप्रोड्यूस किया गया, तो क्या वो कॉपीराइट वायलेशन होगा क्या वहां पे? तो नो, इट विल नॉट अमाउंट एज अ copyright violation. हाँ, then publication in newspaper or magazine a report of lecture delivered in a public. हाँ, जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं ना उनके अलग अलग लेक्चर्स होते हैं देखो हाँ, तो रिपोर्टर्स का तो जॉब ही ना कि वो वहां पे जाए, उनके लेक्चर को सुने और उनके लेक्चर की समरी पेपर में पब्लिश करे, तो क्या वो उनके स्पीच का कॉपीराइट वायलेशन कर रहे हैं क्या वहां पे? नो, दे आर नॉट मेकिंग द वायलेशन ऑफ द कॉपीराइट. हाँ, देन अगर समझो हाँ लाइब्रेरी में रखने के लिए मैक्सिमम 3 कॉपीज हम लोग लेके आते हैं हाँ, तो वो भी कॉपीराइट वायलेशन नहीं है. मेकिंग अ मैक्सिमम ऑफ द 3 कॉपीज फॉर द यूज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी. सी या मैक्सिमम ऑफ 3 कॉपीज फॉर द पब्लिक लाइब्रेरी, इट विल नॉट आल्सो अमाउंट एज उसको भी हम लोग क्या नहीं कंसिडर करेंगे, वायलेशन ऑफ द कॉपीराइट नहीं कंसिडर करेंगे. हाँ, देन क्या गए देखो वहां पे हाँ, हमारे लिए लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यहाँ पे, reproduction of a judgment or order of the court, tribunal or a judicial authority not prohibited from publication. हाँ, अभी देखो ना कितने सारे जजमेंट है ना जो AIR में वगैरह लिखे गए, क्या वो जजमेंट किसी के मालिक की हक में आते, क्या किसी के ओनरशिप हक में आते कि नहीं? अगर मुझे कल ऐसे लगा कि एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया गंगा वाटर पोल्यूशन वाला जो केस है हाँ, वो केस में पूरा स्टडी करूं और उस पर न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखूं हाँ, तो क्या मैं कॉपीराइट वायलेशन करी उस जज के जजमेंट का? आंसर इज नो. बीइंग अ पब्लिक मुझे पूरा अधिकार है कि मैं उस केस को स्टडी करके उस पर राइटअप क्या कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ. तो जजमेंट्स होते हैं ना, उन जजमेंट पे अगर हम लोग हाँ मटेरियल उधर से लेके जजमेंट का हम अपना कुछ बनाते हैं, तो क्या वो कॉपीराइट वायलेशन होगा क्या? आंसर इज नो. हाँ, देन नेक्स्ट वन देखो, समझो ना सबको पता है इंडियन पिनल कोड 1860s है. बहुत से लोगों को ना वो इंग्लिश में समझ में नहीं आता है हाँ, इसीलिए आपको पता है बहुत सारे मराठी बुक्स भी आजकल मिल जाते हैं जिसको वो इंग्लिश लॉ को मराठी में ट्रांसलेट किया हुआ है. तो जो वो मराठी ट्रांसलेशन करते हैं ना इंग्लिश एक्ट्स को हाँ, एक्ट मतलब एसीटी एस वाला हाँ, स्टैट्यूट वाला एक्ट वहां पे, तो जो भी उस इंग्लिश में लिखे गए स्टैट्यूट्स को मराठी में ट्रांसलेट करता है, तो क्या वो ट्रांसलेटर कॉपीराइट वायलेट कर रहा है? सी या नो. हाँ, बट अगर मैंने कोई नॉवेल लिखा है और मेरे नॉवेल का ट्रांसलेशन ऑथर मेरे परमिशन के बिना कर रहा है, तो वो कॉपीराइट वायलेशन कर रहा है. बी क्लियर विद द पॉइंट. हाँ, बट इफ एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट हाँ is it translated in the another language, then it will not be considered as a violation of the copyright. उसको copyright violation नहीं बोला जाएगा वहां पे. हाँ, then हाँ देखो क्या गया वहां पे इन ऑल, इसका मतलब इन सारी चीजों से हमें एक कॉमन पॉइंट क्या पता चल रहा था, फेयर यूज, जिससे हमें कोई मॉनिटरी बेनिफिट नहीं लेना है. ऐसा अगर कुछ फेयर यूज आप कर रहे हो तो वहां पे आप क्या नहीं कर रहे हो बोलो, कॉपीराइट वायलेशन आप नहीं कर रहे हो. हाँ, सो गॉट द पॉइंट. what we have seen, what amounts to infringement of the copyright ये हमने डिस्कस किया, and what did not amount to the infringement of the copyright हाँ, ये भी हमने क्या किया यहाँ पे डिस्कस किया. okay, now the further last part of the infringement we are going to discuss within 5 to 10 minutes. We'll finish and then we'll stop. okay, the last part is अब हमारा क्लाइंट हमारे सामने आया है और हमें बोल रहा है कि ऐसे ऐसे मेरे कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है. हाँ, जो अभी हमने डिस्कस किया उससे हमें पता चल जाएगा सेक्शन 52 एंड पहला वाला सेक्शन देख के हाँ, कि क्या सच में इन्फ्रिंजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है. बीइंग एन एडवोकेट ये पहले हम चेकआउट करेंगे. हाँ, अब हमें पता चला कि यस बाबा इसके कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट हो गया वहां पे. हाँ, तो हमें अगला स्टेप क्या करना पड़ेगा बोलो वहां पे. हाँ, उसको रेमेडीज बतानी पड़ेगी ना कि अब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है जिस पे आप जा सकते हो. आप सबको एक लीगल मैगजीन याद है जो टॉट में आप सबने पढ़ा हुआ था, यूबीजे सिबिर रेमेडियम. डिड यू रिमेम्बर ऑल यूबीजे सिबिर रेमेडियम? व्हेनेवर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर मैगजीन. हाँ, जब भी लॉ हमें कोई राइट देता है उसके साथ साथ हमें लॉ क्या देता है बोलो वहां पे. हाँ, हमें उसके साथ साथ लॉ रेमेडी भी देता है. सेम है, कॉपीराइट एक्ट ने हमारा कॉपीराइट प्रोटेक्शन किया है, तो अगर वही कॉपीराइट कोई इन्फ्रिंज करता है तो हमारे पास क्या होंगे बोलो, रेमेडीज होंगे. हाँ, सो फटाफट लुक आउट करता है. नंबर 1 रेमेडी वी हैव सिविल रेमेडी, नंबर 2 रेमेडी वी हैव क्रिमिनल रेमेडीज. हाँ, एंड नंबर 3 रेमेडी वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज. हाँ,
नंबर 1 सिविल रेमेडी में जो रेमेडी आती है ना, वो है उसको एक इंग्लैंड में पर्टिकुलर फ्रेज दी है उसको, इट्स कॉल्ड एज अ एंटोन पिलर ऑर्डर बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? एंटोन पिलर ऑर्डर। और अपने रूटीन इंग्लिश लैंग्वेज में उसको बोला जाता है सर्च एंड सीजर। जब भी कभी मुझे कहीं से पता चलेगा कि मेरे कॉपीराइटेड वर्क को किसी ने कॉपीज बना के अपने यहाँ पे रखा हुआ है मेरे परमिशन के बिना, तो मैं क्या कर सकती हूँ, कोर्ट से ऑर्डर लेके सर्च एंड सीजर के लिए वहां पे जा सकती हूँ कि उसकी जगह का सर्च किया जा सकता है, एंड जो भी इन्फ्रिंज्ड कॉपीज वहां पर मिलेंगे उसको क्या किया जा सकता है, बोलो, सीज किया जा सकता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज अ सर्च एंड सीजर इन द सिविल रेमेडी। सेकेंड ऑप्शन जो हमने अब तक बहुत बार डिस्कस किया, दैट इज विच इज द बेस्ट ऑफ द रेमेडी अंडर द कॉपीराइट एक्ट, दैट इज इंजंक्शन। इंजंक्शन आपको सबको पता है, रिस्ट्रेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग विच दैट अदर पार्टी डिड नॉट हैव द राइट टू डू। जैसे मेरे नॉवेल का पब्लिकेशन मेरे परमिशन के बिना करने का अधिकार उसको नहीं था और एग्जैक्टली वही वो कर रहा है, तो मैं कोर्ट में जाके क्या ले सकती हूँ, बोलो, इंजंक्शन के ऑर्डर ले सकती हूँ, राइट? So plaintiff may get a relief of restraining the defendant from infringing his copy through permanent or temporary injunction। और आपको पता है फिर प्रोविजन सीपीसी में भी है इसके डिटेल में। ऑर्डर विच ऑर्डर 39 ऑफ द सीपीसी डील विद द इंजंक्शन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी इसके क्या किए गए, डिटेल प्रोविजन दिए गए। सो व्हाट द पॉइंट, सर्च एंड सीजर इज द फर्स्ट रेमेडी आई हैव। Then second remedy I have is the injunction order from the court. Third remedy which I have is the damages on account of the profit। मेरे बुक्स को यूज करके उस सामने वाले ने जो भी प्रॉफिट अर्न किया होगा और मेरा जो भी उस इन्फ्रिंजमेंट की वजह से नुकसान हुआ होगा उसके लिए मैं क्या मांगूंगी, बोलो, आई विल आस्क फॉर अ damages from that particular person। उससे क्या मांग सकती हूँ मैं, damages वहां पे रिकवर कर सकती हूँ। सो दीज आर विच टाइप ऑफ रेमेडीज, सिविल रेमेडीज। नाउ ऑलरेडी एक्सप्लेन पॉइंट है, बट आपको ऑलरेडी बताया मैंने इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो जुरिस्डिक्शन किसको बोलो इन सारे मैटर्स का। every suit or a civil proceeding as regarding the infringement of the copyright is to be filed कहाँ पे इंस्टीट्यूट की जाएगी, देखो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैविंग द जुरिस्डिक्शन। जिस भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जुरिस्डिक्शन होगा उस एरिया के, वहां पे वो सिविल सूट क्या होगा, फाइल होगा। एक्सेप्ट जो ऊपर हमने देखा है कॉपीराइट बोर्ड, जितने इश्यूज कॉपीराइट बोर्ड के लिए रखे गए वो उतने किसके पास जाएंगे, ओनली कॉपीराइट बोर्ड। और बाकी सारे जो सिविल इश्यूज होते हैं वो कॉपीराइट वायलेशन से रिलेटेड किसके पास में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास में। देन नेक्स्ट वन पॉइंट क्या जाता है, देखो, आपके पास क्या लिमिटेशन पीरियड दिया गया है लॉ ने फॉर फाइलिंग द कॉपीराइट वायलेशन सूट। तो आंसर इज affirmative, yes। civil suit for the violation of the copyright can be filed within 3 years from the date of the infringement। जिस दिन आपको पता चल जाता है कि आपका जो भी कॉपीराइटेड वर्क है उसका इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, उस दिन से कितने साल के अंदर अंदर, विदिन 3 years यू हैव टू फाइल द सूट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वो सूट कौन फाइल कर सकता है। देखो, नंबर 1 एग्जाम्पल वाइज जाऊंगी मैं। नंबर 1, मैं जिंदा हूँ, मैंने बुक लिखा है, मैं उसका मॉनेटरी बेनिफिट उठा रही हूँ, तो सूट कौन फाइल कर सकता है, बोलो, ओनर ऑफ द कॉपीराइट। नंबर 2, मेरा वो फ्रेंड, याद है बताया था, मैंने उसको अपने सारे कॉपीराइट असाइन किए थे, और अगर किसी ने इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट कर दिया है तो सूट कौन फाइल कर सकता है, माय दैट फ्रेंड कैन फाइल द सूट, दैट इज assignee of the copyright can also file the suit। याद है मैंने आपको बताया था कि मैंने विल करके रखी है, और समझो मेरी डेथ भी हो गई वहां पे, और मेरे डेथ के बाद किसी ने कॉपीराइट वायलेट कर दिया, तो सूट कौन फाइल करेगा, बोलो, उस विल में जिसको प्रॉपर्टी मिलने वाली है ना। मतलब मेरे एग्जांपल में मैंने किसका बताया था, माय ब्रदर, in whose name I have put out the property, my brother's name। So third person who can file the suit of violation of the copyright is the legatee। will में जिसको प्रॉपर्टी मिलती है उसको क्या बोला जाता है, legatee कॉल किया जाता है। So who can file the suit, legatee can also file the suit। and lastly, अगर anonymous और pseudonymous वर्क है, याद है ना, anonymous अनामिक एंड pseudonymous इमेजिनरी नेम से लिखा हुआ, तो सूट कौन फाइल कर सकता है, बोलो, पब्लिशर वहां पे क्या कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सिविल रेमेडीज फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉपीराइट। देखो, कॉपीराइट एक्ट में अमेंडमेंट करके ये एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक स्टेप लिया गया था, जिसपे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ एक्चुअली, कि
क्रिमिनल रेमेडीज कॉपीराइट वॉल्यूशन के लिए देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, इस पे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसपे डिबेट है कि कॉपीराइट जैसी चीज को आप क्रिमिनल ऑफेंस बना सकते हो क्या, बट स्टिल ऑफ कोर्स लॉ इज लॉ। हाँ, तो वो ऑलरेडी बन चुका है। कॉपीराइट का वॉयलेशन करना मतलब क्राइम है, और जिसके लिए प्रॉपर क्या दी गई है बोलो, पनिशमेंट दी गई है। हाँ, सेक्शन 63 से वो पनिशमेंट के प्रोविजन शुरू हो जाता है। हाँ, अगर नोइंगली हाँ infringing or abetting the infringement of the copyright work आप कर रहे हो knowingly, मतलब you are aware about the fact कि copyright infringement हो सकती है। हाँ, एंड फाइन जो लगाया गया है ना, मिनिमम 50,000 and maximum 2 lakh rupees fine is put out on this particular first offense, which being put out in section C3 of the act. knowingly infringing, जानबूझ के infringe करना या दूसरे को infringe करने के लिए abet करना, उकसाना, knowingly infringing or abetting the infringement of the copyright in a work, the punishable किस से 6 month minimum, maximum 3 year, fine minimum 50,000 and maximum 2 lakh rupees is the fine. यही क्राइम आपने एक बार किया तो सेक्शन 63 की पनिशमेंट एप्लीकेबल हो गई, और यही क्राइम आपने वापस सेकेंड या सब्सिक्वेंट टाइम किया ना तो पनिशमेंट बढ़ जाती है। हाँ, पनिशमेंट कितनी हो जाएगी देखो, मिनिमम 1 year, maximum 3 year imprisonment, हाँ, and fine minimum 1 lakh and maximum 2 lakh rupees will be the fine। हाँ, now देखो, अगर आप इंफ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम कर रहे हो, इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीज ऑफ किसका, कंप्यूटर प्रोग्राम, ये बहुत डेंजरस होता है, आपको पता है, क्योंकि वो एक सेकंड में उसके हजारों लाखों करोड़ों कॉपीज बन सकते हैं, राइट ना, तो ये बहुत ज्यादा सीरियस चीज है। हाँ, इसके लिए इम्प्रिजनमेंट भी क्या दिए देखो उन्होंने, मिनिमम 7 days, हाँ, maximum 3 years punishment has been given, हाँ, and fine minimum 50,000 rupees and maximum 2 lakh rupees fine has been imposed रहा। समझो, कॉपीराइट रजिस्टर में आपने फॉल्स एंट्रीज करवाए, हाँ, तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 1 year और फाइन और बोथ इज द पनिशमेंट यू मे हैव टू सफर। हाँ, आपको पता है आजकल वीडियो पायरेसी नाम की एक बहुत फेमस कंसेप्ट बनती जा रही है, जो भी नई मूवी आती है ना उसकी पायरेटेड कॉपी आ जाती है। हाँ, और वो आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, बहुत सारे वीडियो पार्लर्स में वगैरह वो आसानी से अवेलेबल हो जाती है। तो पब्लिशिंग अ साउंड रिकॉर्डिंग और अ वीडियो फिल्म इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 52A कैपिटल है, ये क्या सेक्शन 52 कैपिटल ए किसके बारे में, वीडियो एंड ऑडियो पायरेसी के बारे में। तो अगर आप पायरेटेड कॉपी का पब्लिशिंग या सेल वगैरह करते हो तो इम्प्रिजनमेंट अप टू द 2 year एंड फाइन will be the punishment for this particular type of a act वहां पे। हाँ, so these are important criminal punishments, हाँ, which are given under the Copyright Act for the violation or infringement of the copyright board। हाँ, and the very last one line point remaining is the administrative remedies for the violation of the copyright। Civil remedies देख लिया हमने, सर्च एंड सीजर, इंजंक्शन, डैमेजेस। हाँ, क्रिमिनल रेमेडीज देख लिया हमने, पनिशमेंट, फाइन, and the last one is the administrative remedies for the violation of the copyright। and see what is the administrative remedy, registrar and the copyright board, जो हमने already discuss किया, are vested with some of the power as relating to check the violation of the copyright। हाँ, तो जो हमने already ऊपर आज स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे वो कॉपीराइट बोर्ड के पावर, हाँ, मतलब असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट से डील करना, रॉयल्टी ऑफ कॉपीराइट से डील करना। हाँ, वो मतलब कैसे रेमेडीज कंसीडर किए जाते हैं बोलो, एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज कंसीडर किए जाते हैं। हाँ, सो हियर we are finishing all the aspects in your syllabus about the copyright। हाँ, that is we have gone through the history of the copyright, we have gone through the concept of the copyright। हाँ, history paper point of view से बहुत important question है। हाँ, then we have gone through the concept of literary, dramatic, musical, artistic, cinematograph and sound recording copyright। हाँ, then again another important point we have discussed yesterday was ownership of copyright। हाँ, then today points we have finished are assignment of the copyright, infringement of the copyright and aspects of the copyright justice। मतलब ही मैंने जिस लैंग्वेज में बताया उसको बोला जाता है रेमेडीज फॉर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट। हाँ, सो इन ऑल 1950 का कॉपीराइट एक्ट हमने यहाँ पे पूरा कर लिया, डिस्कस कर लिया। हाँ, tomorrow the chapter we will deal is the trademark act is the next chapter, so we will try to deal with the trademark act's maximum aspect tomorrow। Okay, thank you।
Okay, Hitesh has asked me one question. Madam, your own notes are available. Are they relinquished? Huh? Actually, Hitesh, that is a big story about my own notes. Almost all the students of Shivaji University use my notes. I know that. And I will not take the name of that person, but you all know one person without my authority, he is selling my notes. I have officially not published yet that notes because I'm working on it to bring for the students in a proper form with all amendments and etc. But from somewhere that notes has reached to XYZ person and he's selling that notes without my permission. So most probably he's doing actually an infringement of copyright, but it's okay. They are getting beneficial to all of you, and that is the aim of my life, students benefit. Okay, so soon you will get my notes, which will be published, properly written, published notes. Okay, huh? So we will meet tomorrow. Thank you once again. If you have any doubt, I already told you in a comment box you can put out. Huh? You have any doubts or any point you think that further need to be explained, so you can put out in the comment box also. Okay, so we'll meet tomorrow. Thank you once again.